Assalamualaikum to everyone. Today we will discuss about the maxima and the minima. Maxima and minima. Maxima and minima are commonly called as extremum. They are commonly called as extremum. Maxima and the minima are commonly called as extremum. Extremum. ठीक है? And this maxima and minima was first invented by a great mathematician called as a Pierre de Fermat. Pierre de Fermat. पायरी डी फर्मेट ने बच्चों इसको पहले क्या किया था, इन्वेंट किया था मैक्सिमा एंड मिनिमा को. सो व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा इन फिजिक्स. मैक्सिमा एंड मिनिमा आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन दैट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट. बच्चों जो मैक्सिमा और मिनिमा जो होता है ये क्या होता है, दीज आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ ए फंक्शन. किसी भी फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स दैट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट्स. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा. One is that is called as absolute maxima and the absolute minima. What is absolute maxima and the absolute minima? ठीक है. Absolute maxima is the highest or the lowest point of a function. Is the globe peak of a curve. बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा this is a graph x axis and the y axis. This is graph x axis and y axis. And this is the curve. This is curve. This is a curve, and this is that's called as a slope. That is called as slope. We know that the slope is equal to tan theta. Slope किसके बराबर होता है, tan theta. And differentiation जो होती है dy by dx of the tan theta is equal to 0. dy by dx of tan theta is equal to 0. So in the maximum differentiation is 0. Differentiation is 0. In case of the another figure that is graph x axis and the y axis, that is the another curve, and this is called as a slope. This is called as slope. This is a curve and this is slope. This is slope. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर भी मिनिमा की बात अगर हम कर लेंगे, जो डिफरेंशिएशन जो होती है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर. ठीक है. So this is the maxima. In maxima as well as a minima, differentiation dy by dx is equal to 0. And maxima and minima is also used in the, it is also used in economics, in mathematics, in physics. It is used in the business, also used in the engineering. Maxima is also used for the algebraic manipulations, calculus operations, matrix, linear algebra and the other mathematical operations. These are the uses of the maxima and minima. ठीक है. And there are the two types of the maxima and minima. One is the absolute maxima and the absolute minima. Absolute maxima is the highest or the lowest point of a function, is the global peak of the curve, where the relative maxima and the minima is the higher or the lower among both neighbors. It is the local peak of the curve, local peak of the curve, and this is the minima and this is called as a maxima. The main important point should be remember that in case of the maxima and in case of the minima, dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to 0. ठीक है. जो डिफरेंशिएशन होती है मैक्सिमा और मिनिमा की वो क्या होती है, 0. तो बच्चों इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं. बच्चों दिस इज अ ग्राफ दैट इज अ मैक्सिमा एंड द मिनिमा. मैक्सिमा एंड मिनिमा. ठीक है. यहाँ पर जो हमारा ये आता है दिस इज अ कर्व, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कर्व. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्लोप. दिस इज कॉल्ड एज स्लोप. वी नो दैट द स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर. और जो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होती है tan थीटा की, ठीक है. सो डिफरेंशिएशन ऑफ द dy by dx ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 0. तो क्या आएगी डिफरेंशिएशन, 0. सिमिलरली इन केस ऑफ द मिनिमा, दिस इज द मिनिमा, दिस इज मिनिमा, दिस इज ऑल्सो अ कर्व, दिस इज ऑल्सो अ कर्व, and this is called as a slope. This is also called as slope, and we know that the slope is equal to tan theta. तो यहाँ पर भी जो differentiation होगी dy by dx, that is 0. That is 0. So point should be remember that in case of the maxima and the minima, differentiation dy by dx, dy by dx is equal to 0. differentiation जो दोनों में होती है वो क्या होती है, 0. So dy by dx is equal to 0 in case of the maxima. dy by dx is equal to 0 in case of the minima. In case of minima, but in case of the d2y divided by dx 2, जब d2y, this is not a d square y, ठीक है, this is d2y divided by dx2. if the d2y divided by dx2 is less than 0, then the मैक्सिमा इज नेगेटिव. मैक्सिमा इज नेगेटिव. ठीक है. यहाँ पर याद रखने की जरूरत है, इफ द d2y डिवाइडेड बाय dx2 इज लेस देन 0, दैट द मैक्सिमम शुड बी नेगेटिव. इन केस ऑफ द मिनिमा, इफ द d2y डिवाइडेड बाय dx2 दैट इज ग्रेटर देन 0, देन द मिनिमा इज पॉजिटिव. मिनिमा इज पॉजिटिव. ठीक है. तो यहाँ पर ये बात आप याद रख लीजिएगा. तो दोनों में जो यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो होती है dy by dx
is equal to 0. But in case of the d2y divided by dx2, the point that is the positive, that is negative, that is negative. ठीक है. In case of the minimum, if the d2y divided by dx2, that is positive, that is पॉजिटिव. ठीक है. सो बोथ दोनों में क्या होती है, dx dy by dx जो डिफरेंशिएशन होती है वो क्या होती है, 0. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैक्सिमम एंड मिनिमा. फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6. फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6. ठीक है. पहले हम यहाँ पर जब हम इन केस ऑफ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा दोनों में जब इसकी डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी, 0. सो dy बाई dx इज इक्वल टू 0. ठीक है. इन केस ऑफ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा दोनों में जो इसकी डिफरेंशिएशन होगी वो क्या होगी, 0. दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 6x, 3 2 6, दैट इज 6x इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 3x, अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 3x इंटू एक्स दैट इज 3x स्क्वायर, 3x इंटू 2 दैट इज 3 2 6 इंटू एक्स दैट इज 6x. तो फंक्शन आएगी x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पर हमारे पास जो x का वैल्यू आया दैट इज 0 एंड x इज इक्वल टू 2. ठीक है. x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2. सो dy, तो अब हम इससे चेक कर लेते हैं d2y डिवाइडेड बाई dx2 इस फार्मूला से. ठीक है. तो यहाँ पर इससे हम चेक कर लेते हैं इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल दैट इज 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x. तो यहाँ पर ये कैसे आएगा, 3x दैट इज x स्क्वायर दैट इज x पावर n. Bring the power down, 2x 2 minus 1 that is 2x1 that is 2x that is 2x minus 6, 3 2 6x माइनस इंटू 6x इज इक्वल टू माइनस 6. यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आया x इज इक्वल टू माइनस 6. ठीक है. दैट इज अ नेगेटिव, दैट इज नेगेटिव. यहाँ पर अगर d2y डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर इज लेस देन 0, अगर 0 से कम आया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा इन केस ऑफ मैक्सिमा. ठीक है. सो मैक्स नेगेटिव आया तो ये क्या होगा, मैक्सिमा x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू आता है दैट इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव किस में आता है, दैट इज अ मिनिमा. If the d2y divided by dx square is greater than 0, then it is positive. ठीक है. So this is the numerical based on the maxima and minima. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारी चैनल लोन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.